Welcome to Under Discussion. Areeb Azhar, as you can see, is an amazing musician. He's a beautiful singer. He's got a very heavy voice. लेकिन आपने अरीब के बड़े भाई उसामा की आवाज नहीं सुनी. वो इतनी भारी है कि गलती से अगर आपके पाँव पे गिर जाए तो आपका पाँव टूट भी सकता है. सही बात है भाई. हाँ, मेरे बड़े भाई की आवाज इस तरह है. अगर मैं इस तरह बोलूं तो वो उसामा की आवाज है. I know. Anyway, welcome to the discussion, Areeb. It's good to have you here, man. Abhi, Thanks. I've seen you've released the video for your song Charsi Bhangi. It's a really interesting video. उसमें खास तौर पे वो जो स्टेज पे जहाँ पे तू गाना गा रहा है और पीछे एक बैनर लगा हुआ है Branded Sufi Night. So that was quite actually intriguing for me. Is that your dig on the corporate structure? Yes. Playing into the music? Totally, Wajad. As you can imagine, I've played a lot of such shows, branded Sufi shows. And it was my comment as an artist. Of course, I'll continue playing those shows because, you know, a lot of your bread and butter as a musician comes from these corporate shows. But while continuing to perform them, I can still comment on them as an artist, and I find them to be a little absurd. You know, a branded Sufi night, it goes against the spirit of Sufi itself, or as I understand Sufi. Because as I understand the poetry which I interpreted, which I sing, जिसको हम एक मलंगी से भी जोड़ते हैं, दरवेशी से भी जोड़ते हैं. Non-conformity, बगावत, you know, sort of status. हाँ, बिल्कुल, बगावत against materialism, and it is anything but a race for materialism. And the corporate structure is built upon greed for material wealth. It functions on the principle of greed. Matlab, even if the CEO of some big corporation suddenly says, you know what, I don't think we should be making such a big profit. I think we should be putting this profit back into society, and I think we should be uplifting the status of our workers and their families and providing them and their surroundings and their neighborhoods with a good education. He'll be changed by the board of governors, because the board of governors is also composed of people who want to see this corporation keep earning money, keep earning profit. So it's a machine. There's no human behind it. Even the humans who are at the top of it are only serving it, as are the humans who are performing for it, such as myself. So it's a self-perpetuating profit-making machine, and I think that's what has brought the world to the brink of destruction. Is this machine, profit-making machine that we've built and don't know how to stop or get out of? ये जो profit-making machine है, ये जो capitalism का structure है, जो capitalist economy है दुनिया में, ये patronize भी तो करती है ना, arts को करती है, चाहे वो तेरी सूफी branded night हो, चाहे वो arts में, कहीं ना कहीं patronage तो है. बिल्कुल करती है. And as someone rightly said, you know, no other system in the history of humankind has succeeded in producing so much wealth. तो इसकी एक ये पहलू तो है that it has produced a lot of wealth. लेकिन इसका कोई वो क्या कहते हैं, the belly, it's a beast with the belly doesn't have any bottom. So इसका पेट कभी भर नहीं सकता. तो ये अगर होना कि चलो हम यहां तक एक वेल्थ बना लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अब इस प्लेनेट पे इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस रुख में ज्यादा वेल्थ बना सके, अब हमें कुछ सस्टेनेबल की तरफ जाना चाहिए क्या, उस तरह ये मशीन सोचती नहीं है. ये मशीन सोच रही होती है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे. ये मशीन इसलिए जो है वो इतना भाला कि पूरी दुनिया के, मेरा ख्याल में कि मुश्किल ही है कि कोई इंसान हमें मिलेगा जो कि क्लाइमेट चेंज पे यकीन नहीं रखेगा. Everyone knows, everyone sees around us that climate change is a reality, and yet we are able to do so little about it. Why?
बिकॉज वो जो बेचारी ग्रीटा थुनबर्ग चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है कि भाई क्या इतना सा बस आपने करना है कि चलो 2030 में 2050 में जाके हम थोड़ा सा इसको यूं कम कर लेंगे, बट द प्लैनेट एवरी डे स्पीशीज ऑफ animals and birds and insects and fishes are being wiped out. Um, so that's the issue with it. It's not a good versus evil thing. I don't think that capitalism is all evil or this has only brought destruction into the world. I think this was part of our human evolution, and I think it served us very well. But now I think we need to move beyond it. Now I think it needs to, call it what you will. I don't fight over tags, so I don't want to necessarily call it capitalism if someone sees capitalism as something else. But we need the existing system, which is based on greed and which is based on making more and more and more money and never being satiated. We need to think of an alternative system. I think it has to be some sort of a shared economy system, where that wealth which is created is distributed more equitably. And I think it also has to be a shared economy with the whole of the planet, not just the human race. हम तो political economy की तरफ निकल गए हैं. निकल पड़े हम, देखो, corporate Sufism से. We were going to talk about how the brands patronize Sufism or any other arts for that matter. अच्छा, लेकिन हमारे पास एक मॉडल है, like Coke Studio is a big model, जहाँ पे एक corporate entity giant came and gave the space and that creative space for the musicians and artists and singers to come together and they did create a beautiful thing. तू मानेगा, तूने भी Coke Studio में 3-4 you've done 4 Coke. हाँ जी 3 सीजन्स में मैं हिस्सा ले चुका हूँ, और अगर दोबारा बुलाएंगे तो दोबारा जाऊंगा मैं. लेकिन यार, मैं कोक स्टूडियो को, आई सी इट एज अ डबल एजेड सॉर्ड. कोक स्टूडियो, ऑफ कोर्स द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट कोक स्टूडियो, एक तो ये कि बहुत सारे उन्होंने म्यूजिशियंस को रोजी रोटी दे दी. चलो, एक्सेप्ट फॉर द हाउस बैंड, वन टाइम रोजी रोटी, कि जब एक साल में एक दफा आपका गाना चला, आपको उसके पैसे मिले. कोई रॉयल्टीज नहीं मिलती किसी को, बाय द वे. आर्टिस्ट को अगर आपका गाना, जितने भी आपके व्यूज हैं, कोई रॉयल्टी का निजाम नहीं है. नहीं, they pay you, they pay you whatever you've decided, they pay you whatever is, and that's it. Then the material is theirs. जब तक वो चलता और वो really अच्छा, जब तक वो चलता रहता है, Coca-Cola makes money, not the artists who have produced the. So this also, by the way, this economic model is flawed. Every artist who has performed in Coke Studio, चाहे उसने आके एक दफा पीछे बैकग्राउंड में खड़े होके कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लिया है या कोई घंटी बजा लिया है, उसी के मुताबिक उसकी एक रॉयल्टी होनी चाहिए. और अगर उस वीडियो को 100,000 व्यूज मिलते हैं या 50,000 या 1 मिलियन, तो उसमें से जो वो एक कतरा जो है वो उसमें भी आना चाहिए हिस्से में. सो एक तो ये है कि इस मॉडल में मसला है. दूसरा ये है कि यस इट हैज, तो एक दफा उन्होंने वो इतने सारे म्यूजिशियंस को रोजी रोटी दे दी. और ये है कि बहुत सारी नौजवान नस्ल को खास तौर पे मुतारफ कराया हमारे फोक म्यूजिक से. Because our younger generations had were not aware of Bulle Shah and so on. So the friendlier side of Bulle Shah, let's say the more acceptable side of Bulle Shah and the Sufi poets was brought forth in Coke Studio. That's the good side. Mawla Khan, Isa Khairlavi और बाकी जो काफी सारे बैंड, वही ना हमारे फोक, बिल्कुल हमारे अपना साईं ज़हूर और बिल्कुल all of these people, Arif Lohar, all of these people got some of them got a second chance again to come back into the mainstream. Some of them, even myself, मेरा जब वो पहली दफा हुस्ने हकीकी गाना आया, एकदम से I found myself almost in the mainstream, उससे पहले मेरी वो इतनी नहीं थी पहुंच. Coke Studio put me up there. So ये तो वो पॉजिटिव साइड है Coke Studio की. नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड एक तो मैंने उस मॉडल की बात की कि इट्स नॉट अ इक्विटेबल मॉडल, रॉयल्टीज म्यूजिशियंस को नहीं मिलती. और दूसरी जो वो अदर साइड ऑफ द सॉर्ट वाली बात है कि बहुत सारे पुराने गाने जो कि कमाल के हैं, उनको मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा वो पॉप अंदाज में पेश करके it sort of made everything accessible to the young yuppie pop youth, but that's
but it destroyed the original. मतलब कुछ गाने हैं जिनको मैं तो हाथ ना लगाऊं यार. मसलन देख, पठाने खान का है मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, मुझे इतने लोगों ने कहा है कि आप उसको री रिकॉर्ड करें, और मैं कहता हूं कि देखें मैं उसको परफॉर्म तो कर लूंगा शायद किसी दिन अगर मुझे याद हो गया, लेकिन मैं उसको क्यों रिकॉर्ड करूं? वो इतनी खूबसूरत तरीके से रिकॉर्ड हुआ है. या तो मैं उसके साथ कोई ऐसी चीज करूं कि वो कभी हुई ना हो और वो उसको उससे भी एक ज्यादा ऊंचाइयों में, बुलंदियों पे ले जाए. Otherwise, for me, taking a great piece of music and then sort of just turning it into blah. For me, so for me, Coke Studio is a double-edged sword. Of course, I'll go and perform for them again happily if they call me. Everyone wants to. There are just a few platforms in Pakistan. और फिर एक और भी मसला है जो कि कोक स्टूडियो का नहीं है, वो हमारी इंडस्ट्री का है. वो ये कि क्योंकि कोक स्टूडियो के अलावा कुछ चीज थी नहीं, चलो अब तो फिर भी नेस्कैफे बेसमेंट भी आ गया, रेलो साउंड सिस्टम भी आ गया, लेकिन क्योंकि कोई और प्लेटफॉर्म था नहीं, so you were measured according to your Coke Studio thing. If you had been in Coke Studio, you were considered someone in something. If you had not been in Coke Studio, you were considered nobody. And so I know many great musicians who haven't been in Coke Studio, but who are considered nobody because they haven't been in Coke Studio. अब ये इंडिया में कोक स्टूडियो जो है वो इतना नहीं चला. एक तो चलो लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी कोक स्टूडियो बेहतर था, मैं मानता हूं पहले साल या पहले 1-2 साल बेहतर था, लेकिन असल वजह मैं समझता हूं ये है कि इंडिया में प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा हैं म्यूजिक के कि एक कोक स्टूडियो से आने से कोई इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता. हमारे यहाँ तो कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं, तो ये सिर्फ कि आप कोक स्टूडियो में आए हैं या नहीं आए हैं, ये आपकी पहचान है. पहले जमाने में जब पाकिस्तान टेलीविजन हुआ करता था और कोई चैनल्स नहीं थे, you know better than I because your father Aslam Azhar was the main man, the father of PTV. तूने वो जमाना देखा है, मैंने भी देखा है कि जो PTV पे आके परफॉर्म करता था, ऑब्वियसली और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तो उनको एक पजीराई मिलती थी. What do you think now, अगर आपके पास ये कोक स्टूडियोज और आपकी ये नेस्कैफे बेसमेंट्स ना हो, तो क्या प्राइवेट चैनल्स या पाकिस्तान टेलीविजन चैनल वो आपको प्लेटफॉर्म दे सकता है जहां से आप it can be give that impetus from where you can actually take off? यार दे सकता सिर्फ नहीं है, मैं तो समझता हूं कि देना लाजमी है. चलो प्राइवेट चैनल्स का तो वो कोई उनका नहीं है ना, उनको तो प्रॉफिट मेकिंग में है जाहिर है, बट पाकिस्तान टेलीविजन is supposed to be a public television. It's run on our money. हमारी सब्सक्रिप्शन पैसों से वो जो है वो पैसे चलता है, हर बिजली के बिल से काटा जाता है उसकी, वैसा ही है ना पाकिस्तान टीवी जो है वो टैक्स पेयर्स मनी से चलता है, फिर बिजली के बिल टैक्स पेयर मनी से पैसे काटते हैं. हाँ, अब उसके अलावा वो अपने इश्तेहारात भी चलाता है, वो अलग बात है. मैं तो समझता हूँ इश्तेहार चलाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए पीटीवी को, अगर वो टैक्स मनी कोई कम नहीं होता, लेकिन क्योंकि ओवर द इयर्स जो है वो इतना एक सफेद हाथी बना दिया, इतना एक ह्यूज बना दिया, इतने लोगों को फालतू एम्प्लॉय कर दिया, फालतू लोगों को भी एम्प्लॉय कर दिया नवाजने के लिए, वो इतना एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी बन गई, अब उसको वो खिलाना है, तो अब वो इश्तेहारों की भी उनको जरूरत पड़ गई. बट व्हाट इट वाज सपोज्ड टू बी वाज अ पब्लिक टेलीविजन रन ऑन टैक्स पेयर्स मनी, which was supposed to provide a service. So providing a service doesn't mean competing with private channels. It doesn't mean कि अगर प्राइवेट चैनल जो है वो कोई सास बहू का ड्रामा दिखा रहा है तो आप अब हमें भी दिखाना पड़ेगा, वरना जो है जी आईबॉल्स उधर चली जाएंगी. आपको आईबॉल्स का तो मसला ही नहीं होना चाहिए, आप तो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. आपको तो एजुकेटिव प्रोग्राम्स चलाने चाहिए पीटीवी को, बच्चों के प्रोग्राम्स चलाने चाहिए. मेरी बात सुन, इट्स अ टेरेस्ट्रियल, अभी भी Yes. आपकी पाकिस्तानी अवाम है पाकिस्तान टेलीविजन देखती है. Sorry, I just wanted to tell. बिल्कुल वैसे ही जो है वो उनकी एक कैप्टिव ऑडियंस है, और अब उनको सारे मतलब मैथमेटिक्स के प्रोग्राम्स चलाएं, साइंस के प्रोग्राम्स चलाएं, एनवायरनमेंट अपनी सफाई माहौल सफाई के प्रोग्राम्स चलाएं, म्यूजिक के, आर्ट्स के, कल्चर के, तारीख के, इस तरह के प्रोग्राम्स चलाएं विदाउट थिंकिंग ऑफ के ओहो लोग हमें ज्यादा पसंद नहीं करेंगे. आप क्यों compete कर रहे हो? यू आर नॉट caught up in the rat race. You are a public service television. You should, that's how it should be run.
सो उससे तो जाहिर है पीटीवी में तो अब देखो एक भी म्यूजिक का प्रोग्राम नहीं होता। कभी कभार कोई थका हुआ कोई नजर आ जाता है, वो कोई रात गए तो कहीं पीछे कोई खान साहब बैठ के कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कोई देयर इज नो एक्साइटिंग म्यूजिक प्रोग्राम एनी मोर ऑन पीटीवी। बाकी चैनल्स में भी अब वो म्यूजिक चैनल्स भी खत्म हो गए, बीच में म्यूजिक चैनल शुरू हुए थे, उनका भी दौर खत्म हो गया। तो आजकल तो देखें सीधी बात है, म्यूजिक इंडस्ट्री पर तो बहुत मुश्किलात आई हुई हैं। I mean, I'm connected with most of the musicians across Pakistan. You know, most of them are my friends. Or I can tell you that the people who are making decent money off music, I can count them on my 10 fingers. In a country of 200 million, it should be much bigger than that. ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री में सरवाइव करना पाकिस्तान में आजकल के जमाने में बड़ा मुश्किल काम है। How do you get by? I mean, तू और क्या करता है म्यूजिक करने के अलावा? तुझे पता ही है गुजरात कितनी हसलिंग चाहिए होती है। You need to hustle. तो अपना मतलब you need to hustle as an artist anywhere in the world. It's not an easy profession. You know, if your objective, if your aim in life is to make money in the shortest possible time, then, you know, I don't know, become an investment banker or become a chartered accountant or something. Don't become an artist, obviously. Artists तो वो बनते हैं जिनके अंदर एक पहले से एक इतना वो एक पैशन होता है, इतना एक वो पागलपना होता है कि उसको कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती, उनको तो वो उसको निभाना पड़ता है। और फिर जो उसको निभाने में कामयाब हो जाते हैं फिर वो बड़े लेजेंड्स भी बन जाते हैं। But those are few and far between. All over the world, most artists are struggling. Only a few artists are secure. But पाकिस्तान में उससे जाहिर है और भी जरा मामला आगे है। वो हम जरा आगे रहते हैं बाकी दुनिया से इन चीजों पे। तो हमारे यहाँ तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। बाहर आपको जो है वो गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, फला फंड होता है, तो ब्रिटेन में ब्रिटिश लॉटरी फंड है, तो ब्रिटिश आर्ट्स काउंसिल है, तो फला। यहाँ पे हमारे यहाँ कोई आर्टिस्ट का नहीं है। कभी कभार कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ थोड़ा सा भलाई कर देती है, सिंध कल्चर वाले अपने म्यूजिशियंस का कभी थोड़ा बहुत कभी कभी कोई उनको पैसे दे देते हैं, केपी कल्चर वाले कभी कभी अपने म्यूजिशियंस को पैसे दे देते हैं। बाकी पंजाब और बलूचिस्तान और जीबी में तो आप भूल जाएं बिल्कुल, प्रोविंशियल लेवल पे। और फेडरल लेवल पे भी कोई यहाँ पे पीएनसीए है, लोक विरसा है, लेकिन उनके पास ऐसे फंड्स तो नहीं है कि वो पूरे मुल्क में जो है वो कोई एक आर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। वो करते हैं जो कर सक रहे होते हैं अपने उसमें अपने महदूद स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए। और जब कोई अच्छा डायरेक्टर आता है तो बहुत अच्छा काम होता है, और जब कोई ब्यूरोक्रेट लग जाता है तो वो बस वो उनका कोई खास काम नहीं होता। सो हियर ऑफ कोर्स अ आर्टिस्ट इज लेफ्ट टू फेंड फॉर हिमसेल्फ। तो एज अ म्यूजिशियन क्या करना पड़ता है आपको? फिर आपको जिंगल्स बनाने पड़ते हैं, आपको पाकिस्तान डे पे कोई मिली नगमा बनाना पड़ता है, आपको कोई और कोई आपको कोई आईएसपीआर के लिए कोई आपको कोई फौज का कोई गाना बनाना पड़ता है, फिर आपको कोई क्रिकेट का कोई गाना बनाना पड़ता है और उसमें और फिर आप कोई बीच में जब ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो आप इंडिया में कुछ अपने गाने कोशिश करते हो जरा लॉन्च वॉन्च करने की, और आप कोशिश करते रहते हो कि दुनिया से कनेक्टेड रहो। If we were more connected to the world, obviously these things would not have been a problem. लेकिन हमने अपने आप को थोड़ा सा जरा वो isolate करके रखा हुआ है ना। Tough life, my man. Being artist, like a tough life for an artist in Pakistan. I know that. Yeah. Let's talk about the music industry. तेरे ख्याल में क्या अच्छा म्यूजिक बन रहा है पाकिस्तान में? You know, is it mediocre? Is it good? Bad? Where do you see yourself? I mean, in all this, good, bad. Yeah, I think mediocrity तो हर चीज में बहुत ज्यादा फैल गई है, और mediocrity का फैलने का I think most of it has to do with just lack of education, lack of awareness. अब हमारे schools में music education ही नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं बड़े बड़े, उन्होंने वो कोई उस्ताद जी को कोई रखा होता है, वो बेचारे आ जाते हैं कोई कीबोर्ड लेके और वो बच्चों को जीवे जीवे पाकिस्तान या दिल दिल पाकिस्तान सिखा देते हैं। दैट्स नॉट अ म्यूजिक एजुकेशन। आई वाज रियली फॉर्चुनेट कि जब मैं स्कूल में था
जूनियर स्कूल में हमारी म्यूजिक टीचर होती थी कराची में, मिसेस लोबो, अ पारसी लेडी, हु वाज अ फैंटास्टिक पियानो प्लेयर, और वो एक ग्रैंड पियानो पे जो है वो हमारी म्यूजिक क्लासेस कराती थी। एंड शी यूज्ड टू मेक अस डू स्केल्स एंड नर्सरी राइम्स एंड सॉन्ग्स, और वो आज तक मुझे गाने याद हैं, ऐसे कमाल के गाने जिसमें पूरी आपकी आवाज की पिच का भी आपको पता चलता है, स्केल्स का भी पता चलता है, सारा म्यूजिक थियरी भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होती है। That was a proper education I had for 3 years, just 3 years while I was in that school, in the junior section. लेकिन म्यूजिक एजुकेशन इज मिसिंग। तो अब म्यूजिक एजुकेशन नहीं है, लोगों को तमीज नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है, तो वो फिर वही जो 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 भेड़ चाल जिस तरफ निकली हुई है, आप भी उसी तरफ निकलो और कहो कि यही अच्छा है। तो मेरा ख्याल में कि जो एक अच्छी तरबियत, अच्छी एजुकेशन जो आपको प्रोवाइड करती है, वो एक एस्थेटिकल सेंस करती है कि आप तफरीक करो कि यार सुरीला क्या है, बेसुरा क्या है, खूबसूरत क्या है, बदसूरत क्या है। ऐसी कोई चीज तो है ना, इट्स नॉट, इट कांट ऑल बी टोटली सब्जेक्टिव। yes it is subjective, beauty is in the eye of the beholder, but there is such a thing as symmetry, harmony, there is such a thing as a pattern that is blending together or a pattern that is not blending together. And of course you can create some contemporary modern art in all of this also, कि आप deliberately किसी चीज को dissonant या disharmonious रखना चाह रहे हो to make a statement, वो भी ठीक है। लेकिन एज लॉन्ग एज आपको पता तो हो कि भाई ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, इसकी अच्छी खूबसूरत खुशबू है, ये इसकी बदबू है। तो आजकल तो वो कराची फूड फेस्ट, आप वो उधर वो करते हैं बेनजीर भुट्टो पार्क में कराची में, साथ वो गंदा नाला वो उनका गुजरा होता है। मैं तो जाके सोचता हूँ यार उधर फूड फेस्ट, यहाँ पे खाने का फेस्टिवल आप कर रहे हो, इधर बदबू आ रही है वहां पे, उधर वो समंदर के पानी से जो कि अंदर वो नाले में आ रहा है उधर क्लिफ्टन में। But people have gotten used to it. People are oblivious to it. मैं भी ज़ाहिर है जब कराची में रह रहा था, I got used to the smell. We have a human being has an incredible capacity to be resilient. हमें किसी चीज में, हमें गू में हमें फेंक दो, हम उसके भी आदी हो जाएंगे, हम उधर भी वो ठीक है, which is actually quite endearing also. लेकिन ये कि मेरा ख्याल में this is what we lack. Because of this, sorry I went off topic there for a bit, but I think because of that there's a lot of mediocrity. जो चीज कोई इंडिया में कोई चल रही होती है, बॉलीवुड से चल रही होती है, हम उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो सारा हमारा एक शादी कल्चर बन चुका है बॉलीवुड फिल्म्स देख देख के, अल्लाह माफ करे, horrendous है ना। तू देख, you telling me कि चंद उंगलियों पे गिन सकते हैं तू उन लोगों को जो कि म्यूजिशियंस हैं जो कि इस मुल्क में पैसे बना रहे हैं, और वो विदाउट नेमिंग ऑब्वियसली नेम्स, मुझे पता है कि वो कौन से लोग हैं और उनका म्यूजिक, चल ठीक है कि आई एम नॉट सेइंग कि इट्स माय कप ऑफ टी, यू नो, देयर म्यूजिक, बट यू कैन टेल कि वो मीडियोकर म्यूजिक है, और वो ही जो लोग हैं वो मीडियोकर म्यूजिक बना के ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनका नाम भी ज्यादा है। तो वो तो सोसाइटी में नजर आ रहा है कि जो मीडियोकर है वो राइज कर रहा है। I mean, that is the problem in the contemporary society. शायद ये वजह भी है कि you know बुरे को बुरा कहना, you know, calling a spade वाली बात शायद खत्म हो गई है, क्योंकि अगर आज आप बैठ के तनकीद करते हैं, like you know, if you want to criticize, देख पूरी दुनिया में आर्ट क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है, आपके रिव्यूज छपते हैं, लेकिन ये कि वो मेरे ख्याल में, डू यू थिंक मार्केट ही सारे चीज को डिक्टेट कर रही है? आर्ट भी नहीं डिक्टेट कर रहा, नकाद भी डिक्टेट नहीं कर रहे, वो देखते हैं कि जिधर चढ़ते सूरज की पूजा, जहां से आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, आप किसी को खफा ना कर दें, तो यू नो यू वेरी केयरफुल इन योर क्रिटिक। तो मुझे भी यही लग रहा है बिल्कुल ऐसा ही है। गंद म्यूजिक है वो आसमानों पे जा रहा है, बिकॉज उसको वो हर चीज में उनको क्रिकेट के सॉन्ग्स भी मिल रहे हैं, तो उनको कॉर्पोरेट सॉन्ग्स भी मिल रहे हैं, तो उनको कॉर्पोरेट नाइट्स पे भी बुलाया जा रहा है और बड़ी पार्टीज पे भी आके वो अपना मीडियोकर म्यूजिक गाते हैं। I know, आज देखेगा कराड, ये क्या चीज है? Come on, did you think? आज देखेगा कराड, what is this man? मतलब all respect to Naseebo Lal as a singer, and all respect to Zulfi as a music producer. I can just comment on the product that is in front of me, and the product in front of me is it's I mean it's shit. Yeah.
people will lap it up, you know, वो PCL का गाना है ना. I think I think people lap it up. एक तो ये है कि if you blast people with anything from a million different sides, obviously half of the people will lap it up with anything. ना वो तो marketing है. Yeah. हाँ, कुछ भी आप कर दो और उनको हर तरफ से वो सुनाओ, वो सुन उस पे लग जाएंगे. फिर आप कहोगे देखा जी कितनी अच्छी चीज थी वो. आप अपना कोई अकाउंट चलाते हो, उसमें आप कोई क्या कहते हैं चाइनीज क्लिक फार्म्स को आप जो है पैसे देके अपने लाइक्स बढ़ा देते हो, फिर आपको कहते हो कि जी थैंक यू गॉड फॉर सो मेनी लाइक्स देखे फॉर माय फैंस. तो ये तो हमें पता है मार्केटिंग की दुनिया. बट I think, look, there's mediocrity all over the world. Pop, you know, just the mainstream pop, and there's and I'm not against it. वो इसकी एक जगह है. मैं I don't want to sound like a, you know, like an extremist in culture or something. उसकी I definitely recognize that there's a space for it. हमारे यहाँ I think there's a lack of other spaces. There's a lack of alternate discourse, alternate music, alternate expression. उसकी कमी इसलिए है क्योंकि वहां पे जो है वो घुटन ज्यादा है. आप खुल के इजहार नहीं कर सकते. कोई आप मतलब मेरे साथ भी हो चुका है कि मेरे गानों में कुछ कि मैं सोचता हूं कि यहाँ पे मैं उसको गाऊं ना गाऊं, या मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं ना करूं, इसमें कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा. कोई नाराज होके कोई कहेगा कि नहीं जी ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, तो कोई कहेगा नहीं है हमारी रिवायतों के खिलाफ है, तो कोई कहेगा कि नहीं जी आपने फलां पे इसमें गाली दी है. तो just generally that tolerance, क्योंकि सोसाइटी में नहीं रही कि हम डिस्कोर्स सुन सके मुख्तलिफ किस्म का, तो वो जो है हमारी आर्ट में भी रिफ्लेक्ट होती है कि लोग जो है वो खुल के इजहार नहीं कर पा रहे. एक बड़ी घुटन है. और जब खुल के नहीं कर पाते तो फिर वो बस वो सिर्फ जो चीज हमारे कानों तक पहुंचती है वो मीडियोक्रिटी होती है, मुझे लगता है. लेकिन इस सारे चक्कर में अच्छे लोग भी आ रहे हैं. I think now I'm still hopeful that amongst the younger musicians that are coming up, there's some interesting work being done. और एक मेरा भी है ना कि मैं अब इतना I don't keep in touch with what's really coming from the alternate side, from the underground. I used to be much more connected with the underground. अब वो मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि मैं देखूं कि अच्छा क्या उधर म्यूजिक बना रहे हैं लोग. There are some interesting things coming up. Platforms मिलेंगे. देखिए सबसे बड़ी बात तो I think ये कि we need live music. Without live music, you can't have a music industry. You can have Coke Studio, Velo, Sound Station, Nescafe Basement, Pepsi, Battle of the Bands, and you can have 20 other projects like this. That's not going to make a difference to the music industry of Pakistan until we have a regular festival circuit, regular venues जहाँ पे हर weekend को आपको पता हो कि मैं जाके उधर फला म्यूजिक सुन सकता हूँ. हर वीकेंड को जाऊंगा तो मुझे गजलें सुनने को मिलेंगी, या मुझे रॉक म्यूजिक सुनेगा, या मुझे वहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई म्यूजिक पे कोई क्लबिंग चल रही होगी, या उधर बैठ के कोई सिर्फ कोई गिटार के साथ कोई बैठ के कोई फ्यूजन बजा रहा होगा, या उधर कोई कवाली चल रही होगी. ऐसी जगह ही नहीं है. हमारे यहाँ शायद लाहौर में कर आके एक पीरूज कैफे है, एंड वो कराची में वो T2F में होता था, जिसको मैं 2 साल तक मैंने भी चलाया. उधर कभी कभी चीजें हो जाती हैं, बट दीज आर नॉट रेगुलर म्यूजिक वेन्यूज. तो हमारे यहाँ मतलब when I used to live in Zagreb in Croatia, Zagreb was a city of 1 million people, and Zagreb में हर वीकेंड को मेरा ख्याल में कि कम से कम कोई 20-30 ऐसे वेन्यूज तो होते थे जहां पे आपको पता था कि अगर आप जाएंगे तो उधर आपको लाइव म्यूजिक सुनने को मिलेगा. तो अब यहाँ पे तो पूरे पाकिस्तान में 20-30 आपको वेन्यूज नहीं मिलेंगे. सो आई थिंक कि जब तक वो एक लाइव म्यूजिक का सीन, और उसके लिए फिर अगेन टॉलरेंस, easier to make it easier for people to organize concerts, this whole system of getting NOCs and ijazatein and then security issues, and this is what makes it difficult. So until that happens, interesting young alternative music won't have a space to flourish, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो सिर्फ उसी चीज को उठाएंगे जो कि मेन स्ट्रीम होगी, जो कि कोशर होगी, जिसमें कोई हद से ज्यादा रिबेलियस बात नहीं की होगी, हद से ज्यादा कोई मुख्तलिफ बात उसमें नहीं होगी.
because they want to make play it safe, obviously. So फिर उनको कोई जगह नहीं मिलेगी. मुझे याद है एक जमाने में एक ड्राइवर म्यूजिक हुआ करता था, एक ड्राइवर जो कि क्या होता था? ड्राइवर म्यूजिक एक तबका था. मेरे when I was growing up, जब मैं इधर मनसेरा से बस पे बैठ के अहमदाबाद जाता था स्कूल पढ़ने, तो बसों में कव्वालियां लगती थी, अताउल्ला ईसा फिल्मी के गाने बजते थे. मुझे अभी भी याद है कि at that time that music was considered uncool by a certain class of our society. You remember that? Yeah. वो they would not listen. They would ये तो इस तरह के एक तबका सुनता है. मुझे अच्छी तरह याद है कि किस किस्म के ड्राइवर इनको में वो एक ड्राइवर वाले गाने सुनने तू लगे. Yeah. It changed when Nusrat Fateh Ali Khan, मुझे अभी भी याद है 1991 में पीटर गैब्रियल के साथ जब मस्त एल्बम आई, suddenly that quality music, मतलब I'm just saying कि just Aziz Mia and Sabri brothers and ये जो सारे कवाल थे, I mean I think they were most amazing singers and कवाली artists. लेकिन बाद में इस चीज को फिर upper class ने इसको अपनाया. Like Ataullah Isa Khelvi suddenly became cool because that certain class ने started owning them. तो वो आज तो तेरे ख्याल में वो जो folk music जिसको मतलब कि एक हमारा जो एक elite तबका कह ले या upper classes कह ले, वो they would used to like they weren't like they didn't warm up to it. अभी बड़े उन्होंने इसको warm up कर दिया. तो वो जो folk music का comeback है, do you think it's coming? Especially जो हमारा young cool crowd है, ये जो young लोग हैं, do you think अगर वो अताउल्ला ईसा खेलवी कोक स्टूडियो में ना गा रहा हो, अगर वो उसके पुराने गाने हैं, तो वो उनको भी एक्सेप्ट करेंगे, ये कूल वाले गानों को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें गिटार्स भी बज? मेरा ख्याल में कि अगेन कुछ हद तक वो उन गानों को करेंगे. Again, this was the good side of this corporatization of music. We started speaking about Coke Studio. So this is, I think, a positive side कि कुछ हद तक तो करेंगे वो. कुछ हद तक अगर किसी ने आतिफ असलम का ताजदारे हरम सुना है और जब वो साबरी ब्रदर्स का जाके सुनेगा, तो कुछ तो उसको कम से कम एक वो पॉइंट ऑफ कनेक्शन तो मिल जाएगा ना कि अच्छा ये वो चीज है. और फिर आगे की बात है whether he has enough music sense to appreciate that or not, or maybe that sounds too traditional for him. लेकिन वो कम से कम वो एक उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो मिल जाएगा. वो तो हो गया. लेकिन मेरा जो सवाल था कि ये हमारी सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट भी करती है certain genres of music. देखिए, it's a class thing. हमारे मंसूर मलंगी थे या हमारे जो इस तरह के जो फोक आर्टिस्ट थे और हैं, तो उनको आप स्टेज पे बिठा के और वाह खान साहब तो हम कह देते हैं, अपने साथ मेज पे बिठा के वो खाना नहीं खाएंगे हम उनके साथ, क्योंकि वो क्लास का फर्क है जी. वो उनको सेपरेटली खाना जाएगा. कितने कॉन्सर्ट्स पे मैंने बजाया है जहां पे so many places I've played in, जहां पे वो मुझसे कहते हैं कि जी आप आके हमारे साथ खा लें, लेकिन आपके साथ जो म्यूजिशियंस हैं ना उनको हम खाना उधर पीछे कमरे में दे देंगे. हाँ, क्योंकि जी वो मिरासी हैं, वो so I mean so this is a class thing, of course, ना हमारे यहाँ के being uncomfortable with our rural roots. इसमें तो बड़े आई थिंक और भी मसले हैं. पंजाब में कुछ ज्यादा हैं कि पढ़ा लिखा पंजाबी आपस में पंजाबी नहीं बोलता, अपने बच्चों के साथ पंजाबी नहीं बोलता, पंजाबी बोलता है तो वो अपने नौकरों के साथ बोलता है. ये मसले इतने नहीं है. सिंध में पढ़ा लिखा सिंधी जो है वो सिंधी बोलेगा, पढ़ा लिखा बलोच जो है बलोची बोलेगा, पढ़ा लिखा पठान पश्तो बोलेगा. ये मसले ज्यादा अपने आइडेंटिटी क्राइसिस के पंजाब में पाकिस्तान में कुछ ज्यादा है. सो आई थिंक उससे भी जरा जुड़ी हुई कहानियां हैं. इसी तरह हमारी सोसाइटी में जो कल्चर भी सोचता रहता हूँ कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है, इंडो सब कॉन्टिनेंटल कल्चर क्या था. My father, who was born before the partition in 1947, suddenly from an Indian became a Pakistani. लेकिन क्या उसका कल्चर और उसका उठना बैठना और उसके घर के
अतवार बदल गए, नहीं बदले। तो वो जो मुझे जो आइडेंटिटी क्राइसिस लग रहा है कि हम ओनरशिप क्यों नहीं ले रहे अपने अपने आर्ट्स की, अपने कल्चर की, अपने 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 पहाड़ों की, अपने लोगों की, अपनी जबानों की। तो ये क्या कंफ्यूजन फैली हुई है? अरे इस पे जरा बात करें। Yeah, I think there's a growing realization about this. Finally, at long last, there is a growing realization कि इसमें थोड़ा सा अब मेरा ख्याल में the powers that be पाकिस्तान में थोड़ा सा उनको समझ आ रही है कि यार हमें we need to start owning our own cultures. अब मतलब देखिए the way I look at it कि मैं तो था नहीं पार्टीशन के जमाने में, मैं तो 72 में पैदा हुआ। तो मैं तो पैदा हुआ हूं, मुझे बताया गया है कि ये आपका मुल्क है, ये उसकी हदूद है। अब मी एज अ पाकिस्तानी, इट इज माय राइट एंड कि मैं कहूं कि ठीक है, विद इन दीज बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान जितना भी तारीख है, 4000 साल, 5000 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, इस्लामिक तारीख, हिंदू तारीख, बुद्धिस्ट तारीख, सिख तारीख, ज़ोरोएस्ट्रियन तारीख, आई डोंट नो, बहाई तारीख, ये सारी जो जितनी भी चीजें हमारी सॉइल से हैं, इनको मैं देखूं, जितनी जबानें हैं यहाँ पे, इसमें कितनी पोइट्रीज लिखी गई हैं, कितने तौर तरीके हैं, कितने खाना पीना है, कितने, ये तो दिस इज कल्चर. And we are truly blessed that we have such a rich culture. But I think that in the past, and now I think there is a growing realization about this. तो ये कि हमने सोचा कि यार बस अगर हमने डांस को अगर हमने ऑन कर लिया तो वो तो हिंदू रिलेटेड चीज है, हालांकि कथक डांस तो मुगल कोर्ट्स में निकला है, मुगल्स को भी हम ऑन करने से हमें मुश्किल पैदा होती है। अगर हमने कोई क्लासिकल म्यूजिक को जी वो भी इंडिया ने ले लिया, तो इंडिया हैज ओन्ड क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, एवरीथिंग। हम कर आके हमारा फोक कल्चर हमारे पास रह गया है। We need to own not only our folk culture, we need to own our classical heritage also, because our forefathers did not all come from Arabia. Maybe a few of them did. Most of our forefathers came, some of them came with the Turks, some of them came with the Persians, some of them came with the Mongols, some of them came with other conquering tribes, and some of them were living here from before that. Some of them maybe had come in the first Aryan invasion of India, and some of them even have Dravidian roots from 4,000 years old, and some of them maybe used to be the inhabitants of Mohenjo-daro. Yeah. So we can't say कि जी हम तो उधर से आए हैं जी, हमारे जो परदादा थे, नहीं, there's no such, this is all bullshit. There's no such thing as a pure race. ये हिटलर ने कोशिश की थी in today's world. आज तो साइंस से आप जाके जी अपना डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट पे आपको पता चल जाएगा जी आपके परदादा तो अफ्रीका से आए थे। आप अपने आप को बड़ा कोई व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट समझते थे, आप समझते थे कि जी मैं तो पूरा अपना कोई, पता चला जी मेरे परदादा तो एक अफ्रीका से आया था, तो एक इजराइल से आया था, फलस्तीन से आया था, तो एक पता नहीं कहां से। तो डीएनए से तो हमें पता चलता है कि हम पूरी, वेयर ऑल मिक्स्ड, एवरीवन इज मिक्स्ड। बाकी चीज रह गई कल्चर की। तो अब कल्चर भी जब हम कहते हैं हमारा कल्चर, भाई अब हमारा कल्चर भी तो कहीं ना कहीं से वो उनको भी तो कहीं ना कहीं से मिला था ना, हवा से तो नहीं, डेवलप करता है। एंड सो वो डेवलपिंग जो है कि जी हमारी मतलब अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो was a revolutionary of his time. He wasn't a traditionalist, you know. आज हम कहते हैं कि नहीं जी, अगर आपने उनका कोई अमीर खुसरो की चीज करनी है तो आपने उसी अंदाज में करें जिस तरह वो कर रहे थे। वो अमीर खुसरो खुद जो है वो उस अंदाज में नहीं कर, वो तो खुद उसको जो है वो इम्प्रोवाइज कर रहा था और कोई नई चीज सबवर्ट कर रहा था। तो कल्चर हैज टू बी kept being subverted. It's a good word you used. Subversion जब तक कल्चर में नहीं आती रहेगी, because that subversion is what keeps it a living culture instead of turning it into a museum
folklore, dinosaur. That subversion within culture keeps making it relevant for today. कि नहीं, अगर इसमें हम ये चीज कर दें जो कि कभी पहले हुई नहीं, लाख लोग इस पे गालियां दें, कोई बात नहीं, लेकिन आज हमें इस तरह समझ आ रही है. सो इसकी गुंजाइश, इसकी स्पेस, इसकी एक्सेप्टेंस माशरे में जब होगी, तो फिर वो मेरा ख्याल में कि then we will be more at ease with who we are. We will be more comfortable in our skin. As I said, I think the people who, today in charge of things are now more and more aware of this and want to do something about it. अरीब, तूने काफी टाइम यूगोस्लाविया में भी गुजारा है, जब यूगोस्लाविया एक मुल्क हुआ करता था. You went as a young man to study in Yugoslavia, फिर तेरे सामने यूगोस्लाविया टूटा. तूने बहुत टाइम गुजारा है. काफी सारे लोगों को शायद तेरे बारे में पता नहीं होगा कि you have spent a good amount of your life, younger life, in Croatia, जो बाद में निकला यूगोस्लाविया के अंदर से एक टुकड़ा. So tell us a bit about how did you end up in Yugoslavia? वहां पे तू क्या कर रहा था और तूने क्या किया, थोड़ा सा बता दे, लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा. ठीक है यार, तो फिर कहानी उससे भी पहले से थोड़ी सी शुरू करते हैं कि I grew up when we shifted to Karachi from Rawalpindi. I was a child. My father was sacked from television during Zia's time. और फिर कराची में जाके हम सब बाएं बाजू की सियासत में जुड़ गए, left wing politics. और that's where I grew up, in that whole fervor of revolution. So I grew up as an inqilabi, and मैं बड़ा मुतासिर था कम्युनिज्म से और मार्क्सिज्म से, और अपने आप को एक बड़ा पक्का सुरखा मानता था. तो फिर मैं 17 साल की उम्र में चला गया पढ़ाई करने सोवियत यूनियन. उस वक्त सोवियत यूनियन भी पूरा था, इट हैडंट ब्रोकन अप. और वहां पे जाके मेरा इनकिलाब उतरा और मैंने देखा कि द वर्ल्ड इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट. और ये तो वो नहीं है जो कि हम समझ रहे थे कि मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म और आप सारी चीजें नेशनलाइज कर लो, एक मजदूरों की पार्टी जो है वो उसको लीड करेगी. तो उधर तो बहुत सारे मसाइल मैंने देखे. It was there were many dystopian things about that. Again, it wasn't all bad either. It wasn't कि वो बिल्कुल ही कोई गई गुजरी जगह थी. It was a very interesting place, but it was too shocking for me to have that realization. So I came back. मैं 17 साल का था सिर्फ, तो मैं वापस आ गया. फिर हमारी दोस्ती हो चुकी थी with this filmmaking couple from Croatian television, Daniel and Jasenka. And they came to interview my father, and I became friends. And then I traveled around with them to Karachi also as an interpreter and so on. And we stayed in touch. तो वो दोबारा आए हुए थे. तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम अब रूस से आ गए हो तो क्या कर रहे हो? मैंने कहा, भाई मैं आपका अमेरिका जाऊंगा. तो उन्होंने कहा, तुम युगोस्लाविया क्यों नहीं आ जाते? तुम्हें फिल्म मेकिंग का शौक है, हमने भी फिल्म मेकिंग जाग्रेब से सीखी हुई है. तुम जाग्रेब आ जाओ, हम लोग तुम्हारी यहाँ पे मदद करेंगे जब तक तुम अपना खुद चीजों को नहीं समझ लोगे. हाँ, so I'd become friends with this filmmaking couple from Zagreb, Daniel and Jasenka. और उन्होंने कहा कि भाई तुम युगोस्लाविया आ जाओ पढ़ाई करने, because Yugoslavia is the ideal compromise between socialism and capitalism. It's a non-aligned country. ना ये रूसी कैंप में है, ना ये अमेरिका के कैंप में है. ये एक it's got the best of both worlds. तो मैं उधर गया 1990 में, और 91 में जो है वो जंग शुरू हो गई. और वो वाकई ऐसा था. Yugoslavia had found some sort of a middle ground between Eastern Europe and Western Europe. वो उस Iron Curtain में भी नहीं था और वो Western Europe का हिस्सा भी नहीं था. और युगोस्लाव पासपोर्ट से युगोस्लाव के लोग जो हैं वो आराम से पूरे यूरोप में घूम सकते थे एक जमाने में. लेकिन फिर उधर जंग शुरू हो गई, एक सिविल वॉर बड़ी बला की, और वो उसके जो है कितने 6 टोटे हो गए. जो युगोस्लाविया था उसकी सारी रियासतें जो है वो अलग अलग मुल्क बन गई. क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, मैसेडोनिया, और अब कोसोवो भी शायद अलग हो ही गया है. तो बस उधर मैंने 13 साल गुजारे. जहां पे मैं था वो रियासत क्रोएशिया बन गई. और
तो बस मैं अभी तक, मैं हर साल मेरा उधर चक्कर लगता है एज यू नो, और मेरा तो वो बिल्कुल दूसरे घर की तरह. आई रियली I'm attached to that country because I was there during the difficult times, so it's my other home. You speak the Croatian language fluently? Yeah, I speak Croatian language fluently. I ended up studying not filmmaking, as you know. I ended up studying philosophy and Indology. Indology यानी कि India studies, जैसे कि Egyptology हो गई. So Indology, and that includes the subcontinent. That includes Pakistan also. So but I studied that in Croatian language. तो एक साल मैंने सिर्फ Croatian language सीखी, और फिर मैं बस शुरू हो गया फलसफा और ये Indology सीखने. और पहले 1-2 साल तो मुझे फलसफा की, फिलॉसफी की क्लासेस क्रोएशियन में कुछ भी समझ नहीं आई. लेकिन वो सब्जेक्ट ही ऐसा था कि मैं देखा कि बाकी लोगों को भी कोई इतनी खास नहीं समझ आ रही, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही फिलॉसफी का है, तो ठीक है, वो मुश्किल से ही समझ आता है. वहाँ पे फिर तू म्यूजिक भी करता रहा, like you kept your music. Yeah, in fact, my music flourished there. उससे पहले तो मैं कुछ गिटार पे कुछ इनकलाबी गाने कुछ थोड़े बहुत गाता था, काफी गाता था. लेकिन वहां जाके then I started playing in different parties, and then did a lot of busking, सड़क पे बैठ के और गाने गाना और पैसे कमाना, इस तरह. उससे बहुत कुछ सीखा, और फिर पब्स और कैफेज में बजाना शुरू किया, फिर मुख्तलिफ बैंड्स बनाए. फिर फाइनली वी मेड दिस आयरिश म्यूजिक बैंड दैट रियली डिड वेल, और वो बड़ा एक कल्ट बैंड बन गया था जागरेब का, द शैमरॉक रोवर्स. और उसमें शुरू में एक आयरिश बंदा था, एक मैं था, और 2-3 और क्रोएशियंस थे. फिर बाद में फिर वो उसका वो आयरिश बंदा और 1-2 क्रोएशियंस उन्हें छोड़ दिया. फिर वो मैंने एक नया शैमरॉक रोवर्स तश्कील दिया, और वो हम काफी सारे हमने वो उधर कॉन्सर्ट्स किए पूरे क्रोएशिया में, और ऑस्ट्रिया, जर्मनी के आयरिश पब्स में जाके भी बहुत परफॉर्म किया. So I really miss performing at pubs. I love performing in pubs. You came back when to Pakistan? I came back in 2003, and उससे पहले, I think a year before that, a couple of years before that, I'd met you when I was visiting Pakistan. Yeah. And you were already hanging out with my late father. And my father told me that you must meet this young man called Wajahat Malik. He's a really, he says कि उससे तुम मिलो, he's closer to your age, वो आके मेरे साथ बैठ जाता है. So I met you, and you told me all these interesting traveling stories around Pakistan. उस वक्त आपका बहुत ज़्यादा rucksack and camera, and then you wrote these long emails which you used to CC all your friends too. You remember? वो CC कर देता था, तू 50 लोगों को CC करता था, वो अपनी पूरी दास्तानें कि अब मैं फलां जगह ट्रैवल करके गया, वहां से मैं हिचहाइक करके उधर फलां ग्लेशियर पे मैंने रात गुजारी, तो उधर जो है जी पता नहीं क्या एडवेंचर हुआ, तो उधर एवलांच आ गया, तो उधर पता नहीं रीच आ गया, तो उधर क्या हुआ. वो कहानियां मैं पढ़ता था, और मैं सोचता था उधर क्रोएशिया में कि यार देखो पाकिस्तान कितनी एक हैपनिंग जगह है, और वजाहत मलिक वहां पे किस तरह उधर ट्रैवल एडवेंचर्स रिकॉर्ड कर रहा है. तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे वापस शिफ्ट हो जाना चाहिए. So those stories of yours were crucial in helping me to make up my mind to shift back. Well, अच्छी बात है कि तू वापस आ गया, and I was instrumental in your moving back. अच्छी बात है कि अभी तक मैं तो मतलब वो कहता हूँ थैंक यू ना कि तुझे गालियां देता हूँ. You brought me back and where I am now. मैंने इतना बड़ा देख, मैं भी 8 साल अमेरिका में रहा हूँ, और आखिर में मैं भी क्रिश्चियन क्लास 99 में वापस आ गया था, and I don't have any regrets, and I'm sure you don't have any regrets, because at the end of the day, this is our I love it, and I'm sure you love it too. बात हुई है कि जगह तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मसाइल हैं, जिस तरह हर दुनिया में जगह में होते हैं मसाइल, तो उनके साथ कोप करना पड़ता है. But बिल्कुल ऐसा है. I think we've done our session. If you want to add anything, अरे तो बोल दे कि हम कोई छोटी मोटी थोड़ी सी डिस्कशन और भी कर सकते हैं, वरना
नहीं बिल्कुल, आई थिंक दैट्स इट, वरना हम तो बैठते हैं, तुझे पता है, फिर हम तो सारी सारी रात बैठे रहते हैं। हाँ तो वो अभी काफी है। हाँ हाँ हाँ। वो तो तो सेशन बस बड़े बड़े चले। हाँ। बट यू नो आई मीन तो मेरा राइट ना, तुझे पता है मैं इस वक्त घर में तेरा में बैठा हूँ। आई तो नो यार, ये अभी देखो खौफनाक तीसरी लहर चली हुई है पाकिस्तान में। So hopefully everyone it passes, and hopefully we come out on the better side of it, and wiser and smarter and healthier yes, as a society, as a people. और बस सही है। It was lovely chatting. दोनों सेम है। और अक्सर हाँ, और अच्छा है चंद लोगों के साथ ना, क्योंकि मैं जब पब्लिकली कुछ और फोरम्स में बोल रहा होता हूँ तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि यार, आप लोग कहते भी हैं कि आप सिर्फ पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव बातें करो। यार वो आप मतलब वो क्या कहता था रूमी के, सीक फॉर द इम्परफेक्शंस, कि आप उसको गोल्ड को ना तलाश करो, आप उसको तलाश करो जो आपकी रुकावट है वहां तक पहुंचने के लिए, गोल्ड तक। तो ये जो बात है ना कि एक पॉजिटिव रहना, ये खुद बहुत मीडियोकर बात है। क्योंकि बहुत मीडियोकर बात है। आज क्योंकि अगर हाँ, मैं वैसे बताऊं, आजकल द रीजन आई स्टार्टेड दिस अंडर डिस्कशन, ये जो मैंने शुरू किया सिलसिला, जस्ट फॉर द सेम रीजन के जो हमारे आजकल यंग लोग हैं, यू नो, उनको एक नैरेटिव दे दी गई, उनको एक तरफ लगा दिया गया है कि जी बस यू नो वी इमेज और पॉजिटिविटी। और भाई जब तक आप अपने मसाइल हल करेंगे, आपने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह घुस बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। हाँ, That's not going to help you. बिल्कुल ऐसा। You हाँ, have to बिल्कुल। confront your own demons. Yes, yes. We have to take a we have to take a long hard look at the mirror until we देखेंगे नहीं कि अच्छा ये मसले हैं जो कि दुनिया कहती रहती है कि यार ये मसले हैं पाकिस्तान में। जब तक अब उनको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, और हम उसको कन्फ्रंट करने का मतलब ही यही है कि हमारे पास वो हमारे पास होप है। We know that we can get past this and we can be better. We can do better. We should expect better of ourselves. You know, आखिर में हम wrap up करते हैं। I'll tell you, when I used to sit with your father, जब मैं वापस आया था अमेरिका से, I used to have long discussions with him and I learned a lot from him. तो उनकी एक बात पे जो हम बात कर रहे हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि मुझे वो कहते थे कि हम विजडम के ऊपर हम बात करते थे, and he used to tell me, in order to become wise, you have to do at least 3 basic things. You have to read books, you have to travel, and you have to engage in a very fruitful intellectual discourse. तो आप जब तक डिस्कोर्स नहीं होगा, आप engage नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप किस सिमत में जा रहे हैं। तो वही बात है कि डिस्कशन जरूरी है, और उस डिस्कशन में आपको ओन करना पड़ता है कि आपके अंदर क्या खराबियां हैं, अच्छाइयां भी और बुराइयां भी। तो थैंक यू वेरी मच अरीब अजहर, इट वाज लवली हैविंग यू। आज मजे की बात है कि माय एडिटर वाज टेलिंग मी कि आपने पिछला एक अंडर डिस्कशन किया फैसल रहमान के साथ, हु इज आल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड, तो आप तू करके बात कर रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा यार अपने मेरे दोस्त क्यों नहीं, मैं उनके साथ आई कैन नॉट, मुझसे वो बनावट नहीं होती। मैं जिस तरह आम जिंदगी में उनसे बात करता हूँ, मैं उसी तरह उनसे बात करूंगा। जाहिर है। और क्या, अगर आप अरीब अजहर साहब, आपका भी, आप वजाहत मलिक, बहुत आपका शुक्रिया। नहीं आपका बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। अगर मैं कोई इंटरव्यू कर रहा होता तो शायद मैं ये वाली ज़बान, लेकिन हम तो चल आखिर में क्या, हाँ बिल्कुल, आखिर में दफा खुदा हाफिज़। थैंक यू।